Okay, so we'll start now. We'll not, wait for much long. I hope, people will start joining Right. in between. So I would like to introduce today, Mr. Aman Jan. So Aman is the CEO of Gamerji, and he is a serial entrepreneur. So we'll give, this chance to him to introduce himself because, he's the best guy to introduce himself. So Yeah, Aman. thanks Rishikesh for having me with you. So Rishikesh, I graduated from IIT Kanpur in 2015, and post that I got an offer from ITC. So I worked there for 3 years. I was handling the role of supply chain and the quality managers, and almost the daily value of the goods which I was handling is 5 crore rupees a day. So that was the scale at which I was operating. Then there also I tried to develop my team to start my company, but since you are working for a big company, so it's difficult to match the mindset with the people working there. So one fine day I got an opportunity. I got a call from Oyo. So it was a 1 month long discussion. Then I decided to go with Oyo. There also I started working with my team, and then I got an offer from an investment firm for which I am working currently now. So this particular investment firms has invested in 3 startups as of now, and I am handling all those 3 startups. So I have handled Gamerji, I have handled Omversity. Currently I am handling Voom. So I am serving as a operation set for Voom, and this is particular the brief of my about professional life. Other than this, in college also I made my teams in particular chemical engineering department. There also I have won various awards at national levels, and during in ITC also I have won award in CII Supply Chain and Logistic Excellence Awards, and even for Gamerji we got selected in Qatar Sports Tech, the only company from India. That is so nice, Aman. So, Aman, we'll start with, something about your childhood. So, something, talk us through your childhood. Was it kind of, very kind of a privileged kind of a childhood, or you were also, kind of a, born in a very middle class background, and you also faced a lot of difficulties during, your childhood days? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन जब भी मैं आंसर करता हूँ. मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, बट मैं बोलता हूँ मैं प्रिविलेज इन द सेंस कि जो बचपन से गाइडेंस मिला है ना मम्मी पापा से, वो बहुत मायने रखता है. एक पर्टिकुलर गाइडेंस था कि भाई जब तक इंसान हारना जीतना नहीं सीखता ना, जब तक इंसान टफ नहीं बनता है. अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ, सो 5th क्लास तक मम्मी ने पढ़ाया, कभी मैं ट्यूशन अटेंड नहीं किया, तो तब तक तो 90% आराम से बनता था. 6th क्लास से मैंने इंडिपेंडेंट पढ़ाई शुरू की, तब मम्मी नहीं पढ़ाती थी, और मेरे सारे फ्रेंड्स एक्सेप्ट मी सब लोग ट्यूशन से जा रहे थे, सिर्फ मैं एक ट्यूशन नहीं जाता था, और मेरी परसेंटेज ड्रॉप हो गया 90 से 70% पे. तब मम्मी ने बीच में सोचा कि अमन की ट्यूशन लगा दें क्या. पापा ने बोला नहीं, अमन की ट्यूशन नहीं लगाएंगे. यही टाइम है जब अमन गिर के खुद खड़ा होकर सीख लिया, तो वो हमेशा भविष्य में सारी कठिनाइयों को सहन कर सकता है और आगे बढ़ सकता है. 2 साल लगे मुझे, 6-7 में मेरे परसेंटेज डाउन रहे, 70s-80s की लाइन में रहते थे. 8th क्लास में एक टाइम ऐसा आया जब 90% हिट किया, और उसके बाद पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा. इसमें एक चीज़ और थी, जब मेरे परसेंटेज कम बन रहे थे ना, पापा ने मुझे बोला रोज जाके फुटबॉल खेल बेटा. मेरा 6th क्लास में टाइम टेबल बन गया था, शाम को 5 बजेंगे और मुझे फुटबॉल ग्राउंड पे जाना और 7 बजे तक फुटबॉल खेलना है. मैंने ट्यूशन नहीं अटेंड की, कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की, लेकिन जो स्पोर्ट्स का महत्व होता है ना, वो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया. अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको हारने जीतने की आदत पड़ती है, आपका माइंड सेट चेंज होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है. काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए फुटबॉल खेलने के लिए आपको. तो वो कंसंट्रेशन जब बिल्डअप हुआ मेरा, अपने आप 90% बनते गए, अपने आप सारी जो भी अचीवमेंट्स होती है ना, धीरे धीरे स्कूल में आते गए. 9th क्लास में जाके मैं हाउस कैप्टन बना, सिंस क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था, मुझे फुटबॉल में काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, डिस्ट्रिक्ट कैप्टन था मैं. 10th क्लास में आई वॉज द स्कूल लीडर, हेड बॉय, इलेक्ट किया, पूरे स्कूल ने वोट किया, ऑलमोस्ट 80-90% वोट्स मुझे मिले थे 10th क्लास में जब मैं था. और फिर 11th-12th में भी जब मैं आगे जा रहा था, भाई कोचिंग करनी IIT वगैरह की, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लोगों ने 10th क्लास से स्टडी तैयार कर दी थी. मैंने 10th क्लास से स्टडी तैयार नहीं की. 10th क्लास में मैंने सिर्फ एक कोचिंग का एग्जाम दिया, 2 कोचिंग्स का, बंसल और रेजोनेंस. मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स बंसल में सिलेक्ट हुए थे, मैं बंसल में सिलेक्ट नहीं हुआ था. और वो दिन था जब मैं पहली बार शायद रोया था कि मेरा बंसल में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बंसल सबसे अच्छी कोचिंग मानी जाती थी उस टाइम की. तब पापा ने एक ही चीज़ बोली, बेटा अच्छी बात है तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें 2 साल मेहनत करनी है, IIT ऐसे क्लियर नहीं होगा. मैंने 2 साल मेहनत की, मैं रेजोनेंस में रह के मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ. ऑलमोस्ट जो सारे फ्रेंड्स बंसल में गए थे मेरे 30-40 फ्रेंड, उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ IIT में. डिफरेंस एक ही है कि मुझे 10th क्लास में रियलाइज़ हो गया कि भाई मुझे मेहनत करनी है, और जो लोग बंसल में चले गए थे शायद उनको ये लगा उनका लेवल ऑलरेडी काफ़ी हाई है. तो सही वक्त पे सही मेहनत करेगा ना इंसान, तो काफ़ी फ़ायदा होता है. तो इन दिस सेंस मेरा बचपन काफ़ी अच्छा निकला. That is so nice. Acha, one small incident, which you think that, created a kind of a mark in your life, which actually happened during your childhood.
अगर मैं बात करूँ, which you cannot forget, right? वो इंसिडेंट है। वैसे ना मैं कभी गाने वगैरह गाता नहीं हूँ, मैं कभी कल्चरल टाइप्स ज़्यादा इंसान रहा नहीं, मैं हमेशा स्पोर्ट्स में, टेक में और एजुकेशन में काफ़ी आगे रहा हूँ। तो जब मैं 10th क्लास में स्कूल लीडर था, तो सेक्शंस होते हैं अपने स्कूल में, 10th A, 10th B, 10th C। तो उस समय मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा था, कल्चरल इवेंट, और मेरी पर्टिकुलर क्लास से कोई भी इंसान सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। और मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरे सेक्शन के लोग पीछे कैसे रह रहे हैं बाकी सारे लोगों से। जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने लोगों से बोला भाई आप जाके पार्टिसिपेट करो, अच्छा गाना गाते हो। तो वहाँ से मेरे पास रिप्लाई आया, अमन अगर करना तो तू करना, तू लीड कर, नहीं तो हम कैसे पार्टिसिपेट करें, हम लोग अच्छा गाते ही नहीं गाना। तो ये चीज़ ना दिल में चुभ गई थी। मैं घर पे आया, सोचा भाई करना है नहीं करना है, क्या करना। मुझे पता है मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है गाना गाने के लिए। मैंने फाइनली रातों रात डिसाइड किया भाई मेरी क्लास से पार्टिसिपेशन तो पक्का होगा, और मैंने जाके अपना ही नाम लिख दिया अपने इवेंट में। मैंने गाना गाया 2000 बच्चों के सामने, लाइन में जब खड़े थे ना, इवेंट भी मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा था, मैं गाना याद कर रहा था उस टाइम पे, और बाकी सारे लोग एकदम चिल थे। गाना गा दिया 2 मिनट, लोग हंस रहे थे, एक्चुअली लोग हंस रहे थे उस समय। जिस समय मैं गाना गा रहा था ना, 1-1.5 मिनट का गाना गाया मैंने, मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस एकदम बेकार है। बट उस दिन मैंने एक चीज़ सीखी। बाद में मेरी जो म्यूज़िक टीचर थी वो मेरे पास आई। हेलो, आवाज़ आ रही है ऋषि? हाँ, now you're हाँ, audible, थोड़ा Aman. network Yes, अभी आ रही है। हाँ। Yeah, please go ahead. हाँ, बाद में जो मैंने एक बात सीखी वहाँ वहाँ पे अंत हो गया। यस, हाँ। तो म्यूजिक टीचर आई, उन्होंने बोला अमन हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है। आई अप्रिशिएट कि तुमने इतना करेज दिखाया कि भाई अपनी क्लास में पार्टिसिपेशन चाहिए था, तुमने गाना कैसा भी गाया हो, बट तुम्हारी हिम्मत की, तुम्हारी ताकत की और तुम्हारी लीडरशिप की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद जब मैं साइकिल स्टैंड पे था, एक लड़की मेरे पास आई, उसने भी ये बोला, वो स्कूल की वन ऑफ द बेस्ट सिंगर थी, कि अमन मैं इतना अच्छा गाना गाने के बाद भी पार्टिसिपेशन की हिम्मत नहीं कर पाई, तुमने गाना गाया और आज पूरा स्कूल तुम्हें इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहा है। उस दिन मैंने एक चीज़ सीख ली, हार और जीत से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस से। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो आप चीज़ें कर सकते हो और एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो उस एक इंसिडेंट ने इतना सिखा दिया ना कि आज मैंने लाइफ में इतनी बड़े बड़े टास्क किए हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किए हैं, और सक्सेसफुली कंप्लीट किया उनमें से। कई जगह फेलियर्स भी मिली है, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई, एक्सप्लोर योर सेल्फ। तो डरना नहीं है, आराम से करो। हारने पे ना कोई आपको मारने वाला है, ना कोई आपसे कुछ छीनने वाला है। कुछ दिनों की बात होती है, कुछ घंटों की बात होती है जहाँ लोग आपके साथ थोड़ी बहुत हंसी उड़ा दें, पर जो आपकी हिम्मत बढ़ गई ना एक बार, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये इंसिडेंट है जिसने मुझे ना डायरेक्शन ही चेंज किया लाइफ का। That is so inspiring, Aman. Right. So Aman, I've been knowing you for a very long time now, and I do get motivated of the incidents that you actually talk about, Right. and could very well relate to many of the stuff. Aman, we'd like to know a little bit about your entrepreneurial journey, right? Why not an established company? Considering the fact that you were from one of the best institutions, engineering institutions in India and across the world also. Right. Why into entrepreneurship? Why not established job? एक कीड़ा होता है ना भाई, खुद की दम पे कुछ करना है। हमेशा एम्प्लॉय रहेंगे तो हमेशा एम्प्लॉय बन के रहेंगे। जब मैं आईटीसी में था, इनफैक्ट अगर मैं कॉलेज से बात बताऊं, तो कॉलेज में एक कीड़ा चल गया था भाई, अपनी दम पे अपनी कंपनी खड़ी करनी है और बड़ी कंपनी खड़ी करनी है। और उसमें मैंने पेशेंस भी सीख लिया भाई, जल्दबाजी किसी चीज़ की है नहीं मुझे। तो फिर मैंने डिसाइड किया भाई पहले एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अभी डायरेक्टली इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेनी है कि भाई खून जाओ, चीज़ें करना आता नहीं है और फिर फाइनली रिग्रेट हो कि भाई कंपनी खोली और कंपनी बंद हो गई। तो वैसा कुछ नहीं करना है। तो आईटीसी में गया, 3 साल काफ़ी अच्छे से सिस्टम्स बनाना सीखा, चीज़ें काम कैसे करती हैं वो सारी चीज़ें। बट एक चीज़ का रियलाइजेशन हमेशा से था मेरे लिए, अगर मैं आईटीसी में रहूँगा ना, मेरा ग्रोथ पाथ एकदम फिक्स था भाई, इतने साल गुजारो, इतना काम करो तो आपका ये लेवल होगा, फिर आपका ये लेवल होगा, आपकी पेस टाइप से बढ़ेगी, एकदम फिक्स कैरियर। बट वहाँ पर ना काम करने में इतना मज़ा नहीं आता। जब आप एक रूटीन काम करते हो ना, वो फील नहीं आती, वो किक नहीं आती आपस में। जब मुझे लगा कि आज मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ और कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने वाला है, राइट। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द टाइम आई शुड गो इनटू द स्टार्टअप वर्ल्ड। तो मुझे ओयो से ऑफर आया उसी समय लकीली, तो ओयो ज्वाइन किया, अभी यहाँ पर ज्वाइन किया। आई एम वर्किंग ऑन माई कंपनी एज वेल, मेरा अपना खुद का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जो चीज़ होती है ना भाई, एक वैल्यू क्रिएट करनी है सिस्टम में, जो आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आपको रन करना है। आप नहीं चाहते हो कि आपके ऊपर से ऑर्डर्स आएँ और आपको कोई ड्राइव करे, उसमें काम करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। आपको मज़ा कब आता है काम करने में? जब आप खुद अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, राइट। अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, 2 टाइप के शेर होते हैं, एक है जंगल का शेर, एक है आपका सर्कस का शेर, राइट। सर्कस के शेर को सब कुछ मिल रहा है, सुबह का खाना मिल रहा है, शाम का खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब उसको क्या करना है, अपने मास्टर की बात माननी है, राइट। ना उसको कोई शूट करेगा जंगल सर्कस में जाके,
ना उसकी किलिंग होगी, ना कोई उसे टॉर्चर करने वाला है, सिर्फ उसे हंटर पड़ेंगे अगर वो अपने मास्टर की बात नहीं मानेगा। जंगल का शेर क्या है भाई, इसके खाने का ठिकाना नहीं है भाई, इसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है उसे किसी रात भूखा भी जीना पड़े, बट वो जंगल देख रहा है, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहा है, तो खुश है, ताकतवर है। सेम चीज अपन भी करना चाहते हैं भाई, अपनी दम पे कुछ करो। हो सकता है आपकी किसी ईयर में इनकम अच्छी होगी, किसी ईयर में इनकम खराब होगी, कभी लाइफ में टफ आएंगे, कभी लाइफ ईजी होगी, बट जो जर्नी है ना, वो जर्नी एक ब्यूटीफुल जर्नी होती है, बहुत शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो इंडिपेंडेंसी की फील आती है। तो वही है मेरे हिसाब से, यही एक चीज़ है जो सारे एंटरप्रेन्योर्स को ड्राइव करती है। एक होता है सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करना, दूसरा होता है खुद की दम पे कुछ करके दिखाना। दीज आर द टू फैक्टर्स है जो मोस्ट ऑफ द लोगों को ड्राइव करते हैं। आप खुद ऋषिकेश एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, आप ऑलरेडी हैं शायद, तो आप भी शायद एग्री करेंगे मुझसे इस पॉइंट पर, राइट? ट्रू, एब्सोल्युटली अमन। अच्छा अमन, एक पॉइंट ये होता है, जो लोग आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से नहीं आते हैं, उनको कभी ना कभी ऐसा लगता है, कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी करने में या स्टार्टअप करने में, कि मुझे हो सकता है इस टाइप का कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? नहीं, मेरे साथ व्हाट डू यू थिंक? मैंने ऐसा देखा नहीं है कहीं। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स अगर आप देखोगे ना आज की डेट में, तो नॉन आईआईटीएंस बहुत सारे लोग हैं, राइट? आईआईटीएंस का सिर्फ एक फायदा होता है कि यार आपका ना एक ब्रांड नेम बन जाता है, आपका एक ट्रस्ट फैक्टर पहले से ही होता है कि भाई बंदा आईआईटी क्लियर करके आया है, इसने 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई की है, आईआईटी में उसको एक अच्छा क्राउड मिला है, अच्छे लोगों के बीच में रह के आया है, तो वो एक बेनिफिट मिलता है आपको। बट अल्टीमेटली आप कभी भी आगे बढ़ोगे ना, सपोर्ट मिलोगे, तो सपोर्ट आपको आपके बोलने के तरीके पे मिलता है, आपके आइडिया पे मिलता है, आपके एग्जीक्यूशन पे मिलता है। उस समय ब्रांड आईआईटी नाम में नहीं आता है, आपको ब्रांड आईआईटी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा। उस प्लेटफॉर्म से आपको इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना और आगे कैसे बढ़ना है ना, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता है, बट हाँ ये है कि आपका एक पहले से नेटवर्क होता है। जैसे आज मेरी नेटवर्क में बात करूँ तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिल जाएगी, मैं उनको कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से, हो सकता है आपका एंटरप्रेन्योर नेटवर्क इतना बड़ा ना हो, तो आपको वो हेल्प लेने में दिक्कत आ सकती है, बट एक बार आपका नेटवर्क बना ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सोचना बेकार ही है कि अगर आप आईआईटी से नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली, प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेटवर्क बनाना है आपको। राइट। और नेटवर्क बनाते कैसे हैं अमन? लाइक हाउ शुड पीपल गो अबाउट मेकिंग नेटवर्क्स? ट्रस्ट, दो चीज़ें होती हैं ऋषि। अगर आप देखोगे ना, आज की डेट में अगर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क बनाने के लिए, वो है आपका लिंक्डइन, ठीक है। दूसरा आपका तरीका है फिजिकल मार्केटिंग, जो आप खुद करते हो, सेल्फ मार्केटिंग। आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, किसी से भी मिले हो, उससे अच्छे से बात करो, ठीक है। और कभी भी ना अपना आइडिया डिस्कस करने में हेजिटेट मत करो। मेरा मानना ये है कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल सब एक साथ सोचते हैं, सबको एक से आइडियाज़ आते हैं, डिफरेंस आता है तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन में। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, कितने सारे लोग एक ही आइडिया पे काम करते हैं, बट सक्सेस किसी एक को ही मिलती है, राइट? कि उसका एग्जीक्यूशन इतना शानदार होता है, उसने सोचा इतने शानदार तरीके से कि उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है। आइडिया तो सबका सेम था, बट उसकी जो बारीकियाँ होती है ना, अगर वो बारीकियाँ बच्चे समझ पाए, उससे फर्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर जितना आप लोगों का ट्रस्ट जीतोगे, लिंक्डइन पे सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट बेस से आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ट्रस्ट जीतने का एक ही तरीका है, आप अपने आइडिया शेयर करो, सामने वाले को हेल्प ऑफर करो, उसको दिखाओ कि आप उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो तभी तो सामने वाला आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। अगर गिव एंड टेक नहीं होगा, सिर्फ आप सामने वाले से लेते जा रहे हो और दे कुछ नहीं रहे हो, तो वो नेटवर्क बनेगा नहीं। दोस्ती और पार्टनरशिप दो बराबरी के लोगों में होती है। अगर आप जिंदगी भर सिर्फ लेते रहोगे, दोगे कुछ नहीं, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, वो पार्टनरशिप चलेगी नहीं लंबी। सेम चीज़ नेटवर्क में, अगर आप सामने वाले से कुछ वैल्यू ले रहे हो, प्लीज़ उसकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड करो। और इट टेक्स टाइम। आप सोचोगे भाई दिन भर में या एक महीने में सारा नेटवर्क बनेगा, आपको नहीं, लोगों को सालों लग जाते हैं। एग्जाम्पल दूँ आपको, तो रोज़ बादाम खाओगे तो दिमाग बढ़ेगा, एक दिन में 100 बादाम खाओगे तो दिमाग नहीं बढ़ेगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आराम आराम से बनेगा वो। तो स्टार्टिंग मेरे हिसाब से कॉलेज में हो जाती है। आपकी कॉलेज में आपके प्रोफेसर से आपने नेटवर्क बनाया, आपने अपने अच्छे दोस्तों से नेटवर्क बना के रखा, ठीक है। फिर उसके आगे निकले, आपने अपने बॉस से अच्छा रिलेशन बनाया, आपके बहुत सारे वेंडर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनसे अच्छा रिलेशन। तो जिसके साथ भी आप काम करते जा रहे हो, रिलेशनशिप मेंटेन करो, लोगों के ओपिनियंस की कदर करो। सामने वाले के ओपिनियंस हो सकता है आप डिसएग्री करो उससे, बट मेक श्योर कि डिसएग्री करने का एक तरीका होता है। सामने वाले को डायरेक्टली गलत मत बोलो, समझो कि वो भी सही हो सकता है, हमेशा मैं ही सही हूँ, ये चीज़ गलत है, ईगो मत लाओ बीच में। तो अगर आपने इतना कर लिया ना, तो आपका नेटवर्क आराम से बनेगा। और मेरा नेटवर्क ऐसे ही बना, मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं नेटवर्क बनाने के लिए। जैसे जैसे लोगों से मिलता गया, मेरा नेटवर्क बनता गया, और अभी भी मैं उसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। और अमन, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे वर्क करें? मतलब जैसे आप हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश भी अच्छी बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको क्या लगता है, क्या कैसे लोग मतलब उस पर वर्क कर सकते हैं? दो ही चीज़ें हैं, एक है आपका कॉन्फिडेंस,
आप उस सब्जेक्ट पे बोलना स्टार्ट करो जिसमें आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, लोग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। अगर उस पर बोलोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा और अपने आप वो फ्लो बनता है। जब भी आप अननेचुरल टॉपिक पे बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आज कोई मुझे बोल दे कि अमन आप बॉलीवुड पे डिटेल्स दो, तो शायद मैं रट के आऊँ चीज़ें, और जहाँ मैंने चीज़ें रटना स्टार्ट किया वो फ्लो नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उस टॉपिक से स्टार्ट करो जो आपकी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, अपनी स्ट्रेंथ को ही आगे ले जाओ, आपका स्किल्स वहाँ से इंप्रूव होगा। दूसरी चीज़, अगर आप कॉलेज या स्कूल में हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जहाँ पर आपको स्टेज पे जाने का मौका मिले, आपको टीम को लीड करने का मौका मिले। मेरा फियर दूर हुआ था वो गाने वाले एग्जाम्पल से, जो मैंने गाने वाला एग्जाम्पल दिया था ना, उस दिन के बाद मुझे स्टेज फियर चला ही गया मेरा। अगर मैं इतना बेकार परफॉर्मेंस गाने पे दे सकता हूँ, उसके बाद मुझे तारीफ मिल रही है मेरी हिम्मत के लिए, तो आई थिंक कुछ भी कर सकते हैं आप, राइट। तो हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। पहला स्टेप हमेशा डिफिकल्ट होता है, एक बार जाओ, कम बोलो, या जो भी करना है प्रैक्टिस करो अकेले में, बट अब मेरे टॉपिक सही चूज करना, गलत टॉपिक पे मत बोलना, जिसमें आपको नई नॉलेज है वो नहीं बोलना है। अच्छा अमन, फेलियर्स को बहुत सारे लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो मतलब लोग ना एक्सेप्ट करने में बहुत देरी लगा देते हैं, जिसके कारण उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। आपको क्या क्या लगता है, फेलियर्स एक्सेप्ट करना कोई कोई छोटा बनने के बराबर तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अरे एक बात बताओ, जितने भी अगर आपने बायोग्राफीज पढ़ी होंगी, किसी की भी पढ़ो, किसकी लाइफ में फेलियर नहीं आया। इनफैक्ट मेरा मानना ये, इंसान वही आगे बढ़ता है जिसकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं। अगर सक्सेस इतनी ईजी होती तो आज पूरी दुनिया सक्सेसफुल होती, राइट। आज पूरी दुनिया सक्सेसफुल नहीं है, हम वहाँ पर सक्सेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसलिए क्योंकि बहुत डिफिकल्ट पाते ही है। तो जो लोग उन स्ट्रगल्स को बीट करते हैं, उन डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को कूल रखते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ सोचते हैं और सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, वो आगे निकलेंगे। अगर आप बौखला गए आपकी फेलियर से और आपका दिमाग काम करना बंद कर गया, आप लोगों पे गुस्सा करने लगे हो, यू आर जस्ट अनदर पर्सन, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। फेलियर्स को एक्सेप्ट करने की एक ही सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है स्पोर्ट्स। स्कूल में मोस्ट ऑफ द बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स का जो अपन निबंध पढ़ते थे ना स्कूल में, भाई खेल कूद का जीवन में मैथ, वो एक्चुअली बहुत अच्छे निबंध हैं। अगर आप खेलोगे तो आपको खेल में हार जीत की भावना आती है, राइट। हारोगे लेकिन वो भी स्पोर्ट्स तरीके से हारोगे, भाई आज हारा हूँ अगले गेम में जीतूंगा। सिमिलरली लाइफ में अप्लाई करूँ ना, आज हारा हूँ अगले दिन जीतूंगा, अगले साल जीतूंगा। एक कंपनी फेल हुई है, दूसरी कंपनी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि टाइम सबका एक सा नहीं होता है। आपके पास जो खुशियां हैं, जो सक्सेसफुल है, वो भी एक टाइम है, एक फेज है, वो भी निकलेगा। आपका अगर बुरा वक्त चल रहा है, वो भी एक फेज है, वो भी निकलेगा। किसी को परमानेंट नहीं मानना है, सिर्फ चेंज कांस्टेंट है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस है, घमंड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फेलियर है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील नहीं करना है। आराम से बैठ के सोचो, रेस्ट करो, ब्रेक ले लो, अपने आप को जितना पॉजिटिव एनर्जी से डाल सकते हो उतना डालो। मोटिवेशनल स्पीकर्स की आप लेक्चर सुनो कि भाई कैसे वो लोग आगे बढ़े हैं। बायोग्राफीज पढ़ो, किसी एक का भी नाम ले लो जिसने, जो इंसान ऐसा हो जिसने स्ट्रगल नहीं किया और वो आगे बढ़ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर खुद डालनी पड़ेगी। यू हैव टू चूज कि आपको क्या चाहिए। अगर सिंपल सी एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जब अपन रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं, राइट, तो वो लोग हमको पैसे वगैरह देते हैं, अपन लेते हैं क्या? मना कर देते हैं ना, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आपकी जिंदगी आपको टेंशन दे रही है, आप टेंशन ले क्यों रहे हो? बोल दो ना, नहीं चाहिए, स्टॉप। बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है। ये प्रैक्टिस से ही आती हैं चीजें। रिश्तेदारों में भी अगर कोई रिश्तेदार बड़ा है और उसने प्यार से बोला तो आप पैसे एक्सेप्ट कर लेते हो, राइट। बट आपके पास हमेशा ना बोलने का असर तो रहता ही है, तो वो ना बोलने का तरीका आना चाहिए। टेंशन आया ना, सोचो ना, एक फेज है, ये फेज 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, बट उस कि भाई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो सोचो सिर्फ 1 साल हुआ है यार, जिंदगी में 70-80 साल हैं, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। तो अगर इस टाइप से सोचोगे ना, पॉजिटिविटी आएगी, तो आप आराम से जाओगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मन, लाइफ में मेंटरशिप का कितना बड़ा रोल वो होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि पढ़ाने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है गाइड करने वाला। राइट। क्योंकि पढ़ाई तो हम खुद से भी कर लेते, जैसे कि आपने सेल्फ स्टडी से आईआईटी क्रैक किया, और आपको गाइड हमेशा आपके पेरेंट्स ने किया, और मे बी लेटर ऑन जाके कुछ मेंटर्स ने भी किया होगा। आपको क्या लगता है, मेंटरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर इट कैन बी डन अवे विद? एक चीज़ है, मेंटरशिप तो एक वो हो जाता है भाई, प्रोफेशनल वर्ड है कि भाई आपके पास कोई प्रोफेशनल मेंटर है उस टाइप से कुछ। मेरी लाइफ में कभी ऐसा कोई मेंटर नहीं रहा है। हर फेज पे अलग अलग लोग आए हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया है। बचपन में मम्मी पापा ने, मेरे बड़े भाई ने मुझे गाइड किया है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। स्कूल के टीचर्स ने गाइड किया है। फेज़ निकला, कॉलेज में आए तो कॉलेज में मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे अच्छे से गाइड किया। तो आपको एक ऐसा बॉन्ड बनाना पड़ता है हमेशा जिससे
आपको जिस पे इतना ट्रस्ट हो कि भाई प्रॉब्लम आई है ना, तो जाके आप उससे डिस्कस कर सको। और एक पर्टिकुलर मेंटर आपको हर जगह हेल्प नहीं करेगा, हर मेंटर का अपना एक क्राइटेरिया होता है, राइट, और आपका एक बॉन्डिंग भी होता है। तो मे बी कोई एक बंदा मुझसे प्रोफेशनली अटैच्ड है बट वो अपनी पर्सनल लाइफ मुझसे डिस्कस नहीं कर सकता, राइट। तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है कोई दोस्त आपका मेंटर का रोल प्ले करे, प्रोफेशनल के आपका कोई प्रोफेसर हो सकता है कॉलेज में, कोई दोस्त भी हो सकता है, अगर आप जॉब में आते हैं कोई आपका बॉस हो सकता है, कोई सबॉर्डिनेट भी आपका मेंटर हो सकता है। तो आपको अपने पास हर जगह ये मेक श्योर करना कि एक या दो इंसान ऐसे हों किसी भी जगह पे कि जिसको आप कभी भी फ़ोन करके या डायरेक्ट बात करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको। लकीली मेरे पास हर फेज़ में एक बंदा ऐसा था, मिनिमम एक बंदा, जिससे मैं डिस्कस करके चीज़ें अपनी आगे निकाल लेता हूँ। जो भी मैंने आज डिसीजंस लिए हैं, भाई आईआईटी छोड़ के ओयो में आना है, ओयो छोड़ के इधर आना है स्टार्टअप में, तो मैंने अपने मेंटर से भी डिस्कस किया है। मेंटर वो मेरा फ्रेंड भी था और मेरे सीनियर्स भी थे और मेरे मम्मी पापा भी थे। तो डिस्कस करो, आराम से खुद सोचो, खुद सेल्फ एनालिसिस करो और आगे बढ़ो। एक चीज़ ज़रूर होती है, मेंटर्स अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बताते हैं। अब आपको ये सोचना होता है कि मेंटर का अपना एक लाइफ और पास्ट एक्सपीरियंस है। जब भी कोई इंसान सॉल्यूशंस की बात करता है ना, तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस हमेशा सॉल्यूशंस के अंदर आता है। तो आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखना है और देखना है क्या वो सॉल्यूशन आपकी लाइफ पे एप्लीकेबल है। जो चीज़ मेरे लिए काम की है जरूरी नहीं वो आपके लिए काम करे, और जो चीज़ आपके लिए काम करके जरूरी नहीं वो मेरे लिए काम करे। मेरे अपने एट्रीब्यूट्स हैं, मेरी अपनी लाइफ है और मेरे अपना फिजिकल एनवायरनमेंट है, राइट, मेरा अपना एक मेंटल थॉट है। तो अगर आपने गलत सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट कर लिया तो दिक्कत है। कॉपी पेस्ट करो सॉल्यूशन को, लेकिन स्मार्टली करो। अभी जैसे कि अमर हम देखते हैं कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स के लिए होड़ लगी होती है, या फिर जॉब सर्च पे जाने के बाद भी लोग बहुत सारे जॉब पोर्टल्स का यूज करते हैं, बट वो ज्यादा यूज में आ नहीं पाते हैं बिकॉज दे just keep on applying and they don't get a short list. Maybe we focus a lot on just applying to the job and not thinking about where can we actually improve our skills. And in that sense, do you think mentors do really play a very important role? Definitely. जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट में भी बताया, अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये गलती करते हैं, भाई एक रेज्यूमे बना दिया और एक ही रेज्यूमे हर जगह भेज दिया। अगर आप किसी कंपनी को सीरियसली ले रहे हो तो रेज्यूमे उस कंपनी के अकॉर्डिंग बनाओ। प्रोजेक्ट एक हो सकता है, मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट किया ऑन प्रोडक्शन, लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो, एक किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट को आपको अलग तरीके से डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ डिस्क्राइब करके अच्छे से नहीं बताई ना, तो मैं उस 4 लाइन पढ़ के क्या मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। मैं तो बोल दूँगा इररिलेवेंट है, मेरे लिए क्या फ़ायदा है भाई, तू तो प्रोडक्शन का बंदा, मुझे तो स्टार्टअप में बंदा चाहिए, मुझे तो हॉस्पिटैलिटी वाला बंदा चाहिए। तो आपको वो स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। अगर आप स्टार्टअप पे अप्लाई कर रहे हो, पहले उसका बिजनेस को समझो, अपने प्रोजेक्ट में बताओ कि भाई इस प्रोजेक्ट की ये स्किल्स ये रिलेवेंट हैं, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो मैं आपकी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपल सा अपना एग्जाम्पल दूँ, जब मैं प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था तो मैंने डिसाइड कर लिया था या तो मैं आईटीसी में जाऊँगा या एचयूएल में जाऊँगा। अगर इन 2 कंपनी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये 2 बेस्ट कंपनी है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो मैं तीसरी कंपनी में जाऊँगा भी नहीं, इंटरव्यू भी नहीं दूंगा। किस्मत से फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। लाइफ का वो एकमात्र इंटरव्यू था, जो पहला इंटरव्यू था 5 साल में, जो मैंने क्रैक कर दिया। उसके पहले कोई इंटरव्यू दिया नहीं मैंने कभी। तो एक कॉन्फिडेंस भी अंदर से था, भाई मैं कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने काफ़ी प्रिपरेशन किया था, सिर्फ 2 कंपनी में फोकस किया 3 महीने। बाकी जो सारे फ्रेंड थे जो वेल डिजर्व भी थे, बट क्यों नहीं कर पाए, साले वो 10-10 कंपनी में फोकस कर रहे हैं। तो वो समझ ही नहीं पाए आईटीसी का माइंडसेट क्या है। तो जब मेरा आईटीसी का इंटरव्यू शुरू हुआ, तो आईटीसी में ना लंबा प्रोसेस होता है भाई, आपको अपना रेज्यूमे सबमिट करना है, फिर एक फॉर्म करना है, फिर एक जीडी रहेगा आपका, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर एचआर इंटरव्यू होगा, तब जाके आपके रिजल्ट्स आएंगे। मेरा प्रोसेस भी ऐसा था, 350 बच्चों ने अप्लाई किया था, सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए थे। जिस समय टेक्निकल इंटरव्यू चल रहा था, सारे लोगों से, सारे कैंडिडेट से इतना टेक्निकल ग्रिल किया गया उनको, और एक बार वो इंटरव्यू में फंस गए ना कि भाई पंप क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ये क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन। जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ और जैसे स्टार्ट हुआ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मैंने अपना स्टोरी क्रिएट किया वहाँ, भाई मेरा स्टोरी ये है। और वहाँ से इस स्टोरी में मैंने बता दिया कि मुझे पता है आईटीसी ना मैनेजमेंट के लिए ले रही है, मुझे उनको मेरी पीपल स्किल लिखनी है। और मैंने वो स्टोरी क्रिएट की, मैंने कैसे मैंने टीम बनाया, कैसे मैंने आईटी में इतने सारे अवार्ड जीते, कैसे मैंने लोगों को मैं वैल्यू ऐड किया। और सारे, एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आया मेरे इंटरव्यू में, सारा उन्होंने मेरी स्टोरी पूछी। आपने टीम क्रिएट की कैसे की, पहली चीज़। आपके साथ लोग काम करने क्यों आए फ्री में, दूसरी चीज़। आपने कैसे प्रोजेक्ट ढूंढा, कैसे फंड्स निकाला, ये क्वेश्चन से। और मैं क्वालिफाई करके एचआर इंटरव्यू को, एचआर में भी सेम चीज़, सेम स्टोरी कंटिन्यू हुई। मुझे पता था आईटीसी को चाहिए क्या है मेरे से। तो अगर आप समझ जाओ ना सामने वाले को चाहिए क्या है आपसे, और आप उस पॉइंट को अपनी स्टोरी में इंक्लूड कर लो,
तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा प्रॉब्लम आता है आपको सामने वाले से कनेक्ट करने में। जब मैं खुद हायर करता हूँ लोगों को, मैं एक ही चीज़ देखता हूँ सबसे पहले, सामने वाला इंसान मेरे से कितने अच्छे से कनेक्ट हो पा रहा है। क्योंकि अगर वो मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ ना, तो वो मेरे काम से भी कनेक्ट नहीं होगा। सामने वाले की स्किल्स कम चलेंगी, लेकिन कनेक्शन है और लर्निंग कैपेबिलिटी आपके पास, आप कुछ सीखना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो मैं आपको अपनी टीम में ले सकता हूँ। आपके पास स्किल्स हैं, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो भाई मैं आपको क्या समझाऊंगा, क्या आपसे काम कराऊंगा, राइट। अब आता है दूसरा स्किल अपग्रेडेशन पे। एक चीज़ ज़रूर है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सिर्फ आपको थ्योरी की नॉलेज मिलती है और स्किल्स नहीं होती हैं, राइट। लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, सारे कॉलेज उतने इक्विप्ड नहीं होते हैं, तो लोगों को अपने आप अपग्रेड करना पड़ेगा। और सिंपल सा तरीका है, अगर आपको उसके लिए अपना इंटरेस्ट जगाना है। अब लोग बोलते हैं अगर हमको गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो सारी चीज़ें कैसे करेंगे, तो मुझे बताओ, क्या फेसबुक चलाने का गाइडेंस किसी ने दिया था लोगों को? लोगों का इंटरेस्ट जागा, लोगों को देखा, आप अपने आप फेसबुक चलाने लगे, अपने आप इंस्टाग्राम चलाने लगे, राइट। और फेसबुक लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट हुए ना वो सारी चीज़ें। तो अगर आप एक कॉलेज में हो और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में और सेकंड ईयर में, तो अपना इंटरेस्ट जगा लो कि भाई मेरा इंटरेस्ट या तो कोर है तो कोर की स्किल अपग्रेड करो, कोडिंग है तो कोडिंग की करो, मैकेनिकल है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, जरूरी नहीं आपकी स्ट्रीम से भी आपको अपग्रेड करना हो, आप दूसरी स्ट्रीम पर भी स्किल ले सकते हो। मैनेजमेंट की स्किल सीख लो, टीम को लीड करो, इनिशिएटिव्स लो, और वही स्किल्स आपको प्लेसमेंट में या आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, आपको फ़ायदा देंगी। इट्स ऑल अबाउट कि आपको एक ऐसा इंटरेस्ट चाहिए जो आप कॉलेज में थ्रू आउट द 4 ईयर्स और 5 ईयर 3 ईयर जो भी आपका प्रोग्राम है उसमें पकड़ के चलें। अगर वो नहीं किया ना, तो आपको इंटरव्यू में ही प्रॉब्लम आएगी, आप आखिरी में रटते रह जाओगे, भाई टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आंसर, और वहीं से डिस्कनेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। राइट। अच्छा अमन, कभी कभी लोग जो स्टार्टअप करते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, जैसे कल भी हम जब इंटरव्यू कर रहे थे, देयर वाज ए क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड, लाइक लेट अस सपोज आई एम नॉट ए टेक्निकल गाय and if I want to open kind of a company which actually involves making of apps or maybe making of websites, how can I handle that initial part, right? When I don't have that much money to invest. ठीक है, इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आपको। एक इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, मान लो अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास वो टीम आए जिसमें 2 को फाउंडर हों, एक जो बिजनेस साइड में बहुत एक्सपर्ट हो, दूसरा जो टेक्निकल साइड में बहुत एक्सपर्ट हो। अगर को फाउंडर में एक टेक्निकल है और एक बिजनेस पर्सन है ना, तो वो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता कि ऐसी बैलेंस टीम बन पाए। अगर आपके पास टेक्निकल बंदा नहीं है और इनिशियली आपके पास अपना बजट प्लान कर लो, भाई बजट क्या है, उस बजट के अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज ले सकते हो, चाहे वो वेबसाइट का हो, चाहे वो ऐप बनाने का हो, कुछ भी हो। 1000 रुपये से भी आपकी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं या उससे भी कम पे। तो वहाँ से स्टार्ट करो, अपना प्रोडक्ट बिल्डअप करो, और फिर एक इंसान ऐसा ढूंढना तो है आपको इंसान जो आपके साथ पार्टनरशिप में आपका टेक्निकल हैंडल कर पाए। क्योंकि अगर आपको टेक्निकल बंदा नहीं मिला ना, ट्रस्ट वर्दी, आपको वेंडर्स के चक्कर में आप घूमते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा, आप बिजनेस में फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपका टेक का प्रोडक्ट भी स्टेबल नहीं होगा, बिजनेस भी फोकस नहीं होगा, और एक साथ 2 नाव में सवार होने वाली बात है ये। एक साथ दो नाव में कभी सवार नहीं होना है, एक ही नाव में सवार होकर आगे बढ़ना है। तो एक बंदा टेक देखेगा, दूसरा बंदा बिजनेस देखेगा, कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। अब वो बंदा आपका पार्टनर भी हो सकता है या वो बंदा आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, बट वो कनेक्शन और वो ट्रस्ट होना is most important thing. So Aman, one of our audience has actually asked this question that usually interviewers ask like how was your day? So how to answer questions like this? How was your day? मेरा तो मानना है कि भाई जैसा भी दिन गया, honestly बोलो। honest वाली चीज़ होती है ना, दिल से निकलती है, आपके फेस के एक्सप्रेशंस पे दिखती है। अगर आपने बनावटी आंसर दिया, HR लोग इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि आपके फेस एक्सप्रेशन देख के समझ जाएंगे कि ये इंसान गलत बोल रहा है। दूसरी चीज़ समझो इंटेंशन, कि सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा क्यों है। कभी किसी ने सोचा है कि अगर आप जाते हो तो पहला क्वेश्चन ये क्यों आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और हाउ वाज योर डे? क्योंकि वो आइस ब्रेकिंग होता है। मैं आपको नहीं जानता हूँ, राइट? आप मेरे सामने इंटरव्यू देने आए हो तो मैं आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करूँ? मैं कुछ और पूछ ही नहीं सकता आपसे। तो वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप अपने बारे में कुछ बताओगे, मैं आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लूंगा और वहाँ से मैं कन्वर्सेशन आगे ले जाऊँगा। कोई भी इंटरव्यू ऐसा कैंडिडेट पसंद नहीं करता है जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, हमेशा एक स्टोरी बनना चाहिए। तो उसने वो क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, वो उस पर आपको जज नहीं करेगा। वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछा कि आपका कनेक्शन बने उससे, आपका फ्लो बने उस बंदे इंटरव्यूअर से बात करने के लिए, और इंटरव्यूअर का आपसे बात करने का फ्लो बने। इसके दोनों आंसर दे दो। सर मेरा दिन आज बहुत थकाने वाला था, मैं सुबह जल्दी उठा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। कुछ अगर आपकी कोई बेकार भी चीज़ भी हुई तो वो भी बोल दो कि आज मैं क्लास में लेट गया, वहाँ ये ऐसा हुआ, और सारी चीज़ें। अगर अच्छा दिन गया तो उसको अच्छे से बोलो, सर आज का दिन बहुत अच्छा गया, ये सारी चीज़ें अच्छी हुई। तो जो हॉनेस्ट आंसर है उसको अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हुए
करेक्ट फीलिंग के साथ बोलो, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का इंटेंशन है कनेक्शन, ना कि जज कर रहा है कोई आपको। तो अगर आपने बोला भाई टायरिंग दिन गया, थकाने वाला दिन था, तो इंटरव्यूअर का अगला क्वेश्चन होगा ऐसा क्या हो गया भाई, बताओ इतने क्यों थक गए आप। वहाँ से एक स्टोरी क्रिएट हुई। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से चलेंगे, आपने एक बार हंस के बात कर ली ना, आगे के सारे क्वेश्चन ईजी होने वाले हैं। तो कभी बनावटी नहीं बनना है, हमेशा हॉनेस्टली आंसर दो, चाहे वो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ हो, चाहे वो हाउ वाज योर डे हो, या कोई और क्वेश्चन हो। That is, I think that would help God to answer the question, next time once somebody asks you, how was your day? Okay. So Aman, like from ITC, to OYO to a startup, so you must have to, transition between different job profiles. How did you do that? अगर मैं बताऊँ तो कॉलेज में ना, जब मैं था तो वैसे मैंने तो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, बट मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में इतना सा भी काम नहीं किया है पिछले 5 साल में। कॉलेज में था कि भाई मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हीट एक्सचेंजर्स बनाए हैं, तो मुझे अपना स्टार्टअप उस फील्ड में स्टार्ट करना है। बट सून मुझे रियलाइज़ हो गया था कि साला सब कुछ मैनेजमेंट पे ही चलता है, आपको पीपल स्किल्स डेवलप करनी है अपनी। तो मैंने कॉलेज में अपना टीम बनाया, तो वहाँ से थोड़ी लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुई। आईटीसी में गया, आईटीसी ने डेवलप की। और एक माइंडसेट, अगर आप बेसिक स्किल्स सीख गए हो ना कि लोगों से मैनेज कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करना है और उनसे काम कैसे कराना है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। आप लोगों से तभी काम करा पाओगे जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मैंने शुरू में बोला था कि हर रिलेशन ना गिव एंड टेक पे चलता है। आप सिर्फ लोगों से लेते जाओगे तो वो रिलेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो चाहे वो आपका एम्प्लॉय भी हो, आप सिर्फ एम्प्लॉय से काम कराते जा रहे हो ना, आपने उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं की, उसकी स्किल्स अपग्रेड नहीं की, तो वो एम्प्लॉय आपके लिए ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा या आपसे दुखी रहेगा वो। तो वो 2 वे चीज़ होती है। तो ये चीज़ मैंने आईटीसी में 3 साल में बहुत अच्छे से डेवलप कर ली, भाई करना कैसे है। और फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। फिर आप ओयो में जाओ ना, माइंडसेट सेम है, आपका सिर्फ सिनेरियो चेंज हुआ है। नॉलेज गेन करो, फर्स्ट लर्न द रूल्स ऑफ द गेम्स, उसके बाद गेम खेलो। तो पहले 1 महीने आप गेम्स के रूल समझ लो। जब मैं आईटी से ओयो गया तो भाई रूल समझ लिए गेम्स के, भाई हॉस्पिटलिटी रन कैसे करता है, और फिर उसके हिसाब से आप अपनी टीम को हैंडल करो और आगे ले जाओ। टीम हैंडल करने की स्किल्स सेम है, यूनिवर्सल है, जो मैंने आपको बताया। अच्छे से बात करो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनसे अच्छे से काम करा लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर यहाँ से स्टार्टअप में आया, मैंने गेमिंग देखा, यहाँ पर भी हॉस्पिटलिटी भी देखा, तो उसमें भी सेम चीज़ है, काम कराना है लोगों को, बट थॉट प्रोसेस चेंज होता है। मैट्रिक्स ड्राइव करने का मेथड सेम है। चाहे आप प्रोडक्शन की बात करो तो वहाँ पर आपके जो बिजनेस पैरामीटर्स होते हैं, चाहे आप गेमिंग की बात करो जो आपके बिजनेस पैरामीटर्स हैं, ब्रॉड पैरामीटर्स आर सेम। ब्रॉड पैरामीटर्स जो आप ड्रिल डाउन करते हो, मान लो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के अंदर इनपुट पैरामीटर्स क्या है, आपके एक्सपेंस के पैरामीटर्स क्या है, उनको ड्रिल डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, आपके अपने आप सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो माइंडसेट एक बार आपका बन गया ना पीपल स्किल वाला, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। प्रॉब्लम कब आता है, जब आप कोई चेंज चाहते नहीं हो लाइफ में। मान लो मैं आईटीसी से ओयो में मूव नहीं करना चाहता और मुझे कोई धक्का मार के ओयो में डाल देता, तो मुझे प्रॉब्लम आती। ये डिसीजंस मैंने खुद लिए हैं, मैं खुद विलिंगली जाना चाहता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जब आप कोई काम खुद अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और नहीं करना है तो आप 100 बहाने ढूंढोगे काम ना करने के। इट्स ऑल अबाउट दैट। अच्छा अमन, आपने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया है गेमिंग इंडस्ट्री में, व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज द इंडस्ट्री मूविंग टुवर्ड्स? लॉकडाउन में बताऊँ, शायद गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ है लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन चल रहा था, ऑलमोस्ट हर कंपनी ने ना काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा है। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने अपना यूजर बेस डबल किया है। अनलॉक शुरू हुआ तो अनलॉक के बाद थोड़ा डिप आया है नंबर्स में। डेली एक्टिव यूजर्स जो होते हैं, भाई रोज़ कितने लोग खेलने आ रहे हैं, कितना टाइम लोग ऐप पे स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिप आया। फिर जब से पबजी बैन हुआ है, तो जो ई स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट है, ई स्पोर्ट्स अपन किसको बोलते हैं, जहाँ पर लोग ऑफिशियली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं विद एन एंट्री फी एंड देन दे गेट सम विनिंग प्राइजेस, तो इस पर्टिकुलर गेमिंग फॉर्मेट को हम ई स्पोर्ट्स बोलते हैं। उसमें बहुत बड़ा डिप आया क्योंकि पबजी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर था उसमें। तो जितनी भी ई स्पोर्ट्स कंपनी है ऑपरेट कर रही हैं, पबजी के बैन होने के बाद बहुत सारी कंपनियों में 50% से 60% का ड्रॉप आया है उनके डेली एक्टिव यूजर्स में। इसके अलावा जो कैजुअल गेमिंग थी, भाई आप जो मोबाइल गेम्स नॉर्मल खेल रहे हो, उसमें इम्पैक्ट नहीं आया है। इम्पैक्ट सिर्फ एक ही आया कि अनलॉक शुरू हो गया है तो लोग बिजी हो गए अपनी लाइफ में, तो उनके पास गेम खेलने का टाइम कम है। बट आज ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंडिया में बड़ी हो रही है। फ्यूचर में आप देखोगे बहुत सारे ऑटोमेशन भी आएंगे ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। एआई भी यूज़ होने वाला है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि उसका स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है। अभी कोई भी ऐप मेरे हिसाब से एआई यूज़ नहीं कर रही है ई स्पोर्ट्स में, बट उसका फ्यूचर आने वाला है। तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। इन्वेस्टर्स को लग रहा है अगर इस टाइम में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, आज से 4-5 साल बाद जब इंडस्ट्री थोड़ी मैच्योर होगी तो उनका पैसा डबल और ट्रिपल होने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। एंटरप्रेन्योर सोच रहे हैं, कंपटीशन कम है, कोई भी मार्केट लीडर आज की डेट में नहीं है। जैसे आप फैंटेसी स्पोर्ट्स में सोचोगे ना, तो ड्रीम 11 इज द मार्केट लीडर।
राइट, उससे कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो ई स्पोर्ट्स में ऐसा कोई मार्केट लीडर आज की डेट में है नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कॉम्पिटिशन कम है, इन्वेस्टमेंट मिलना आसान है, तो उस सेंस में ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। सो अमन, हम लोगों को थोड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स के बीच का थोड़ा डिफरेंस क्लियर करेंगे क्या? क्या डिफरेंस है दोनों में? स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, आप एक टीम बनाते हो, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, चाहे वो हॉकी की टीम हो, उसमें भी स्किल्स होती हैं, क्योंकि अगर अपन कोर्ट की बात करें तो पहले ये था कि भाई बैटिंग तो नहीं है, तो कोर्ट में केस गया, कोर्ट में प्रूफ हो गया कि भाई इट्स अ गेम ऑफ स्किल, क्योंकि आप 11 लोगों की जब टीम बना रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई पिच कंडीशंस कैसी है, कौन सा बैट्समैन कौन सा बॉलर अच्छा खेलेगा। लेकिन उसमें गेम आप नहीं खेलते हो, आपने सिर्फ टीम बना ली, वो जो टीम बनी है वो प्लेयर एक्चुअली में जब गेम परफॉर्म करते हैं ग्राउंड पे, उसके पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 4 मारा विराट कोहली ने, तो विराट कोहली के एक 4 मारने के कुछ पॉइंट्स आपको मिल गए, हर ऐप के अपने अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। उसने सेंचुरी मारी तो सेंचुरी के कुछ पॉइंट्स मिल गए, उसने कैच लिया तो कैच के कुछ पॉइंट्स मिल गए, रन आउट किया तो रन आउट के कुछ पॉइंट्स मिल गए। अल्टीमेटली जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो विनर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये 1000 लोगों ने डाले तो आपके हो गए 10,000 रुपये, राइट। उसको ऑलमोस्ट 8,000 रुपये विनिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो 1000 लोग थे तो 1000 में से 500 लोगों को आपने प्राइज मनी बांट दिया, बट इसमें आप गेम नहीं खेल रहे हो। ई स्पोर्ट्स का मॉडल भी सेम है। मान लो 10 रुपये 1000 लोगों ने डाले तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10,000 रुपये। इसमें भी आप 8,000 रुपये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे विनिंग में, बट इसमें आप गेम खेल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप पबजी खेल रहे हो, मैं पबजी खेल रहा हूँ, और ऐसे 100 लोग पबजी खेल रहे हैं, तो जो पबजी में जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। तो यहाँ पर एक्शन मैं ले रहा हूँ, फैंटेसी स्पोर्ट्स में एक्शन कोई और ले रहा है, आपने टीम बनाई है। ई स्पोर्ट्स में मैं आपके साथ कम्पीट कर रहा हूँ, मैं अपना स्किल दिखा रहा हूँ गेम खेलते हुए, और फिर मैं अपना विनिंग टीम कर रहा हूँ। तो इट्स अ गेम ऑफ गेमिंग स्किल। ई स्पोर्ट्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स इट्स अ नॉलेज स्किल। दोनों में इतना डिफरेंस। Got it. Yes. Yes. Got it. That was really enhancing our knowledge base. Right. So Aman, what are your plans like in the future? Like, from gaming industry, are you planning to expand to some somewhere else? मैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एडोटेक प्रोजेक्ट पे। ऑलमोस्ट मेरी इन्वेस्टर से बात होना भी स्टार्ट हो गई है कुछ। तो होपफुली सून आई एम थिंकिंग कि भाई जल्दी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है और वहाँ से मैं अपनी कंपनी खुद स्टार्ट करूँगा। तो मैं हमेशा से ना नॉलेज शेयरिंग पे विश्वास रखता हूँ। मेरा स्ट्रेंथ एरिया भी वही है कि मैं जितना लोगों को गाइड कर सकता हूँ। मेरा फीडबैक भी वही आता है कॉलेज से और सारे लोगों से कि भाई मैं लोगों को अच्छे से नॉलेज शेयर करवा सकता हूँ, लोगों को सिखा सकता हूँ। दूसरा जो प्लस पॉइंट है मेरा बैकग्राउंड काफ़ी वेरिड हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड में बड़ी कंपनी है नाम, हॉस्पिटलिटी आ गया, छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ गए मेरे बैकग्राउंड में, कॉलेज का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। तो वो जो एक स्किल सेट और जो माइंड सेट है ना, मैं समझता हूँ लोगों का माइंड सेट क्या होता है, तो वहाँ से मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ उनके कैरियर में उन सारी चीज़ों के लिए। तो उसी फील्ड में मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ। Right. So Aman, like, there are a number of people who are attached to us, so will actually share your contact details with them. If you are opening some startup, maybe you should prefer hiring some of them. They are very much interested, Sure. to work in a startup, Definitely. and especially with a person like you with a leader. Right, Aman. So Aman, like, it's always great, talking to you, and we learned a lot about the gaming sector. We learned about your background. Right. A little bit of, will want to know about your personal life, right? So, any difficulty, you'd like to, share about, something which happened in your personal life, and because personal life do affect what you are doing professionally. They cannot be considered to be mutually. Totally agree. So how do you handle, the kind of a work pressure that you have, and at the same time your personal life, and now you're married as well, Right. to tell to your audience? पता है सारी प्रॉब्लम एक ही चीज़ से आती हैं, वो है मिसकम्युनिकेशन। और मिसकम्युनिकेशन ना कभी हमको पढ़ाया नहीं जाता, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है। जब मैं बहुत सारे लोगों की जब वर्कशॉप करता हूँ, टीम बिल्डिंग वर्कशॉप, वहाँ पर मैं सीईओज़ को भी कोच करता हूँ, टीम लीडर्स को भी कोच करता हूँ, उसमें एक चीज़ सिखाता हूँ कि भाई मिसकम्युनिकेशन कितनी आसानी से हो जाता है जिसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो बोल रहा हूँ, राइट, अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर लूँ कि ऋषि उसको 100% समझ गया है, और ऋषि भी ये समझ रहा है कि अमन ने जो बोला है ऋषि को सब कुछ आता है 100%, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। अब अपन बात करते हैं ऑफिशियल लाइफ की। मान लो मैंने अपने एक एम्प्लॉय को बोला कि भाई आपको ये काम करना है, एम्प्लॉय ने बोल दिया हाँ सर मैं करके ले आऊँगा। एम्प्लॉय अगले दिन करके लाया, मैंने बोला मैंने कुछ और बोला था और तू करके कुछ और लाया। नहीं सर आपने तो ये बोला था। अब ना वो एम्प्लॉय मानने तैयार है, ना मैं मानने तैयार हूँ कि भाई मैंने क्या बोला था, राइट। तो बेस्ट तरीका होता है आपने जो बोला मेक श्योर करो कि सामने वाला उस चीज़ को समझ गया। उसको मेक श्योर करने का तरीका क्या होता है, एक बार रिपीट पूछ लो भाई क्या करने वाला है बता दे। सेम चीज़ आते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में।
अब आपके पास पर्सनल लाइफ में आपकी कमिटमेंट्स क्या है? एक ही कमिटमेंट है कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है अच्छे से, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाएंगे, भाई लंच अच्छे से कर लो, डिनर अच्छे से कर लो, वीकेंड्स पे आप घूमने चले जाओ, कुछ गेम्स घर में खेल लो, घर में कुछ एक्टिविटीज़ कर लो। बेसिकली घर का माहौल अच्छा बनाना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? मान लो मेरा ऑफिस में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट आ गया है, ठीक है। घर में मम्मी पापा का, वाइफ का कमिटमेंट कुछ और है, उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन कुछ और है। मैंने अपने मम्मी पापा को, वाइफ को बोला ही नहीं कि मेरा ऑफिस का जो कमिटमेंट है वो कितना बड़ा कमिटमेंट है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो रिस्पेक्ट करें मेरे इस कमिटमेंट की। नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं कि ऑफिस में चल क्या रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑफिस में किसी डील को लेकर कोई दिक्कत आ गई है, और मैं उस काम में फोकस कर रहा हूँ। और मेरे पास मम्मी पापा खाना खाने बुलाने आए, कोई काम के लिए, चलो मन गेम खेलते हैं, और मैंने चिल्ला दिया कि आप देख नहीं रहे हो मैं काम कर रहा हूँ, टेंशन बिल्डअप होगा यहाँ से। 2 मिनट अच्छे से बोलो कि माँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, वाइफ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, और अभी ये कमिटमेंट है, अपन ये चीज़ कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। सामने वाला भी समझेगा उस चीज़ को। तो अगर आपने थोड़ा अच्छे से कम्युनिकेट कर लिया, अपनी ऑफिस लाइफ की चीज़ें अपनी वाइफ और अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कर लो, थोड़ा सा उनको भी कॉन्टेक्ट समझने में आसान हो। ऐसा ना हो कि आपने कभी कुछ शेयर ही नहीं किया है और अचानक से आप बोल दो भाई ऐसा ऐसा हो गया, वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। सिमिलरली अगर घर में कुछ ज़रूरी चल रहा है, अपने ऑफिस के कलीग्स को उसके बारे में बता के रखो, भाई आज मेरे घर में एक बड़ा कमिटमेंट है, मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। ये मत करो कि भाई घर में कुछ फंक्शन चल रहा है, मैंने बॉस को भी नहीं बताया, मैंने कलीग्स को भी नहीं बताया, वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, साले मैं फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठा। मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं ऐसा, और फिर वहाँ टेंशन बिल्डअप होता है, साले तूने फ़ोन कैसे नहीं उठाया मेरा, और फिर वहाँ की डांट पड़ेगी। ऑफिस में किसी ने आपको डांट दिया, लड़ाई हो गई, वो गुस्सा किस पे निकलेगा? घर पे निकलेगा। देखो मैंने आप लोगों की बात मान ली, और फिर वो गुस्सा मैंने घर वाले पे निकाल दिया। फिर साइकिल होती है एक, अगर उस साइकिल में फंस गए ना, प्रॉब्लम आएगी हमेशा। कम्युनिकेशन मेंटेन रखो, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी फैमिली के साथ अच्छे से शेयर कर लो। फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली की प्रॉब्लम ऑफिस में शेयर नहीं कर सकते, बट यस यू कैन टेल समथिंग, घर के कुछ कमिटमेंट्स हैं, अर्जेंट कमिटमेंट्स हैं, मुझे करना है, वो प्रायोरिटीज डिसाइड करना होता है। देयर आर टाइम्स जब एक साथ दोनों जगह बड़े कमिटमेंट्स आते हैं, घर का भी बड़ा कमिटमेंट है और ऑफिस का भी बड़ा कमिटमेंट है, तो भी फिर आपको कम्युनिकेशन ही अच्छे से करना है। पहले सबसे पहले घर वालों से बात कर लो, भाई ये 2 चीज़ें हैं, क्या मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखूँ या इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखूँ। मान लो घर वाले नहीं मान रहे हैं, या घर वालों को घर वाले की चीज़ प्रायोरिटी लग रही है, राइट। ऑफिस में जाओ, अपने बॉस से बात करो, कलीग से बात करो, जो भी डिसीजन मेकर है वहाँ पर, उसको समझाओ सर ऐसी ऐसी चीज़ें, क्या यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। डायरेक्टली मना मत करो, डायरेक्टली अपने ऑफिस में मत बोल दो, अपने कलीग्स में ये काम मैं नहीं करूँगा कि मेरी ये चीज़ कमिटमेंट है। घर पे डायरेक्टली मना मत करो, सुनो सामने वाले की बात, अपनी बात सुनाओ। आई थिंक मोस्ट ऑफ चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं सॉर्टेड। ये चीज़ तो मैंने कॉलेज में सीख ली थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम इनिशियली आया था जब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, कि भाई घर से काम करने में मुझे नहीं लगता है, मेरे लिए ऐसा है कि घर पे हूँ तो मतलब मेरी छुट्टियाँ हैं, हमेशा से वही आदत रही है मेरी। तो वो माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगा, मुझे 2 हफ्ते लगे, भाई घर से भी काम होता है। आज मुझे पता चला कि घर से काम हो रहा है, एंड वन ऑफ द बेस्ट लाइफ मैं जी रहा हूँ आज की डेट में। प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस है, मम्मी पापा हैं, वाइफ है, घर में खेल रहे हैं आराम से, साथ में खाना खाते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, ट्रैवल में कोई टाइम नहीं जा रहा है मेरा, और ऑफिस का काम भी बढ़िया चल रहा है। कमिटमेंट्स आते हैं, कमिटमेंट्स कम्युनिकेट करो। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना खराब कब होती हैं? जब आप पहले डर जाते हो, और ये चीज़ हो गया, मैं सच्चाई बॉस को नहीं बता रहा हूँ, या सच्चाई मैं घर पे नहीं बता रहा हूँ। अगर वो होगा ना, एक झूठ बोलोगे, दूसरा झूठ बोलोगे, तीसरा झूठ बोलोगे, आप खुद फंसते जाओगे। जितना झूठ बोलोगे उतना आपके माइंड में टेंशन रहेगा। तो जो मैंने बोला था ना, हाउ वॉज योर डे, सच बोलो, हमेशा सच बोलो। सिर्फ उस एक क्वेश्चन का आंसर सच नहीं बोलना है। लाइफ में तो सच बोलो, सिर्फ इतना होता है, ट्वीक द ट्रूथ। मैं ट्वीक द ट्रूथ पे बिलीव करता हूँ कि कोई चीज़ खराब हो गई है ना, थोड़े वर्ड्स इस टाइप से यूज़ करो कि सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। किसी को ना बोलना है, वर्ड्स ऐसे यूज़ करो सामने वाले को आप आराम से ना बोल पाए, वो आपको अप्रिशिएट कर पाए। किसी को डांटना है तो उसमें भी वर्ड्स अच्छे यूज़ करो, कोई हार्श वर्ड यूज़ मत करो, क्योंकि वो एक फेज़ है आपका। अगर जिस दिन गुस्सा शांत होगा, जिस पल, उस दिन आप खुद पछताओगे और रिलेशनशिप खराब कर बैठोगे। तो ट्वीक द ट्रूथ करो, झूठ मत बोलो। ये मेरा पर्सनल मानना है, और मैं इस चीज़ का बहुत यूज़ करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, और हमेशा बेनिफिट मिलता है। This was really helpful, Aman, and this will be beneficial to me as well, and to all our audience. डिफिकल्ट होता है इसे यूज़ करना, नहीं अगर कर लिया ना, इस पर अगर आपने मास्टरी कर ली तो ना लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम से बात करने से सॉल्व हो जाती हैं। Okay, so we will open it up to the audience. So if you have got any questions, guys, please feel free to put it in front of Aman. We'll be here for 2-3 minutes more so as to answer your queries. And you can feel free to to talk to him over LinkedIn. You can connect to him. Even I will give you his mail ID, where you can communicate your things to him. If you have got some ideas, if you're looking for some job, even you can be in touch with Aman. Right. He'll surely help you out. Right. Okay, so I think most of
most of them have got the answers. Right. Feel free to drop in the comments, guys, and Aman will be here with us. Anytime. We can call him again. To answer all your questions. I will be happy. And we wish him all the best. Yeah. And this was really an enlightening session, Aman. Thank you for joining us. We'll be in touch. Thanks, Rishi. Thanks. Take care. Okay, thanks. Bye. Bye, Aman.